اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے افلا یشکرون، یہ لوگ میرا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ بندو، یہی وہ اللہ ہے جو آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے بادلوں کے ذریعے تاکہ تمہارے لیے پھل پھول اگا سکے۔ افلا تشکرون، کیا تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہارے لیے اولادوں کی نعمتیں عطا کرتا ہے اور تمہارے دل کے سکون کے لیے چوپائیوں کو بنایا تاکہ تم ان کو کاٹ کر اس کا گوشت کھا سکو، نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو۔ افلا تشکرون، کیا تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ یہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہارے لیے تمہارے ماں کے سینے سے خون کو دودھ بنا کر تمہارے بچپن میں تم کو دودھ پلا کر تمہارے ہڈیوں میں طاقت اللہ عطا کرتا ہے۔ افلا تشکرون، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو شہد کے مکھی کے منہ میں پھول کا رس دے کر اسے شہد کا خطرہ بنا کر تمہارے لیے رحمت اور شفا بنا کر تمہارے لیے بناتا ہے۔ کیا تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ امت محمدیہ، تم سے پہلے کے قوم والوں کو جب بھی ہم نے نعمتیں دی انہوں نے ناشکراپن کیا، ہم نے دنیا سے عبرت کا نشان ان کو بنا دیا۔ تم ایسا ناشکراپن نہ کرنا ورنہ تم کو مسلنے میں دیری نہیں لگتی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا رب العالمین ہے، دونوں جہاں کا خالق اور مالک ہے۔ اسی کے لیے ہم جیتے اور مرتے ہیں، ہماری عبادتیں اسی کے لیے، ہمارا جینا اسی کے لیے، ہمارا مرنا اسی کے لیے۔ درود نازل ہو سارے نبی و رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شکر گزاری کے کیا فائدے ہیں، ناشکری کرنے کے کیا برے انجام اور عذابات ہیں، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ سبا کی 19ویں آیت میں کہتا ہے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اللہ کی اس کائنات میں بہت سی نشانیاں ہیں جو اللہ عز و جل کے لیے حد سے زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ اللہ کی شکریہ ادا کرنے والا۔ ایک بندہ مومن کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ناشکراپن اور نافرمانی پن یہ شیطان اور ابلیس کا کام ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ایک مومن کو بن کر رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی حدیث میں، مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کو بھلائیاں عطا کرتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، دولت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اچھے دن اس کے رکھتا ہے، ایسے عالم میں اگر وہ اللہ کا شکریہ بجا لائے گا،
अल्लाह उसे ढेर सारा सवाब से माला माल करेगा। मोमिन को अगर मुसीबत आ गई, तंगदस्ती आ गई, भूखा फाका कशापन गुजार रहा है, बहुत ज्यादा गुर्बत और खर्जदारी और बीमारी के दिनों से गुजर रहा है, मुसीबतों आलाम के अय्याम से गुजर रहा है, ऐसे आलम में अगर वो सब्र करेगा, अल्लाह ताला उसे तब भी बेइंतहा अजर व सवाब से माला माल करेगा। मुसीबतों में सब्र करने पर अजर, खुशियों के दिनों में शुक्र करने पर अजर। अल्लाह के नबी सुनन नबी दाऊद की हदीस में बयान फरमाते हैं, जामे तिर्मिजी की रिवायत में, अल्लाह ताला जब मैं रात में तहज्जुद की नमाज में उठकर अल्लाह की इबादतें करता, लंबे लंबे क़ियाम करता, रुकू करता, सजदे करता, पेट में खाना ना होने की वजह से मेरे पैरों में सूजन आ जाया करती थी, मेरे पैरों में वर्म आ जाया करता था, मैं कई देर तक सजदे में जाकर गश की हालत में गिर जाता। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मुझे जिब्राईल अमीन के जरिए यह ऑफर पेश किया, मेरे नबी अगर आप हां कहें, इस मक्के की जो सबसे बड़ी वादी बतहा जिसे कहते हैं, ये वादी बतहा आपको सोने से, चांदी हीरे मोतियों से हम भरकर अता करेंगे। बोलिए चाहिए आपको? खैसरो किसरा के खजाने लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। इतना फाका कशी आप क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के नबी ये ऑफर देखकर अपने सर को सजदे में रखकर अल्लाह के शुक्रिया में रोते हुए कहते हैं, मेरे अल्लाह मुझे खैसरो किसरा के खजाने नहीं चाहिए, मुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की ऐश और आराम नहीं चाहिए। अल्लाह जिस दिन तू रोजी देगा तेरा शुक्रिया अदा करूंगा, जिस दिन मुझे रोजी नहीं मिलेगी उस दिन रोजे की नियत कर लूंगा। अल्लाह ये गुर्बत के अय्याम मेरे लिए बेहतर है, वो दौलत मुझे नहीं चाहिए। अल्लाहुम्मा अहिनी मिस्कीना व अमतनी मिस्कीना वहशुरुहु फी ज़ुमरतिल मसाकीन यौमल क़ियामा। मुझे मिस्कीन बना के जिंदा रख, मिस्कीनों में मौत दे, क़यामत के दिन भी जगह है तो मिस्कीनों में मुझे जगह। हम लोग दौलत देकर जिंदा रख, दौलत वाला बना के जिंदा रख, मरे तो भी करोड़पति बना के मौत दे, उठे क़यामत में तो भी अरबपतियों में जगह। हमारी तमन्ना है, हमारी दुआएं, हमारे नबी मिस्कीन बना। क्यों? इंसान का दिल शुक्रगुजार बंदा बनकर रहता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह इब्राहिम की 34वें आयत में कहता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, हरगिज हरगिज शुमार नहीं कर सकते। सूरह कहफ के आखिरी आयतों में अल्लाह कहता है, सारे समंदरों को सियाही बना लो, सारे दरख्तों को खलम बना लो। अल्लाह ने जितनी नेमतें सर से लेकर पैर तक तुम्हारे बदन में दे रखी हैं, तुम्हारे घरों में दे रखे हैं, अल्लाह की इन नेमतों को लिखते बैठो। कसम उस अल्लाह की, ये 7 समंदर खत्म हो जाएंगे, खल में दुनिया के तमाम दरख्त लिख लिख कर घट जाएंगे, लेकिन अल्लाह की वो नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी जो अल्लाह ने आप पर निछावर कर रखा है। हमारे सर से लेकर पैर तक हमारे बदन में, हमारे जिस्म में कितनी नेमतें हैं। 50 साल 60 साल तक हमारी किडनियां सलामत हैं, बगैर उसे चार्जिंग किए अपना काम कर रहे हैं, बगैर उसे फिल्टर किए अपना काम कर रहे हैं। 50-60 साल के बाद जब किडनी में खराबी आती है, स्टोन पैदा होता है, किडनी फेल होती है, हम अपनी हर दुआओं में किडनी का नाम लेकर दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे गुर्दे बराबर कर दे, मेरे किडनी के तकलीफ को दूर कर दे, मेरी किडनी फेल हो रही है उसे बचा ले, अल्लाह मेरे गुर्दों की हिफाजत कर। 60 साल में कभी किडनियों का नाम लेकर शुक्रिया अदा किए? अरे अल्लाह उस भाई की किडनियां फेल हो गई जो डायलिसिस कराते हुए जिंदगी मौत के कश्मकश में तड़प तड़प के जिया, मेरी किडनियां सलामत रखा, अल्लाह मैं मेरी इन सलामत वाली किडनियों पे तेरी शुक्रिया अदा। कभी आपने शुक्रिया अदा किया? आज आपके मुंह में दांत हैं, कभी आप उस दांत का जिक्र नहीं करते, अल्लाह का शुक्र नहीं करते। जिस दिन उस दांत में कीड़ पकड़ेगा, जिस दिन आपके मुंह से दांत निकल जाएंगे, चबाने के लायक नहीं बचेंगे, तब आपको दांतों की कदर क्या है मालूम होगी।
आज आपकी आंखें हैं, कभी आंखों की नेमत आपको नहीं मालूम, आंखों की कदर नहीं मालूम। जिस दिन आपकी दोनों आंखों की बीनाई जायल हो जाएगी, देखने से कासिर हो जाओगे, उस दिन पता चलेगा ये नेमत कितनी बड़ी थी। आज जाकर देखो अस्पतालों में 24 घंटे, एक दिन 7 घंटे 6 घंटे ऑक्सीजन रखकर हमारी बॉडी को ऑपरेशन किया जाता है। 6 घंटे ऑक्सीजन का लाखों बिल बनाते हैं डॉक्टर लोग। बचपन से लेकर इतनी जवानी बुढ़ापे तक अल्लाह ने हजारों टन नहीं करोड़ों टन ऑक्सीजन फ्री में हमको रोजाना दे रहा है। कभी उस ऑक्सीजन का शुक्रिया अल्लाह के लिए आपने अदा किया? हमारे फेफड़े अल्लाह की नेमत, हमारा दिल अल्लाह की नेमत, हमारा जिगर अल्लाह की नेमत, हमारी किडनियां अल्लाह की नेमत, हमारा भेजा अल्लाह की नेमत। अरे मामूली भेजा, उस भेजे के अंदर का एक हिस्सा, उस हिस्से के अंदर अगर दूरबीन में रखकर माइक्रोस्कोप में देखें, हजारों रगे होती है, बारीक बारीक नसें। रात में जब हम सोते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारे बदन के 360 जोड़ होते हैं। जब सुबह में तुम उठते हो, अल्लाह ताला सही सलामत तुम्हें सुलाता है, सही सलामत तुम्हें जगाता है। अल्लाह के शुक्रिया के लिए तुम क्या करते हो? अल्लाह के नबी हमको क्या करना चाहिए? तुम्हारे 360 जोड़ों के बदले 360 दिरहम रोजाना सुबह में अल्लाह के रास्ते में सदका देना चाहिए। अल्लाह के नबी हम में से कोई 360 दिरहम कमाता नहीं, रोजाना सदका कहां से करेंगे? नबी ने कहा अगर ये नहीं कर सकते, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह अकबर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, रास्ते से तकलीफदा चीज हटाओ, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, यहां तक कि तुम्हारी बीवी के मुंह में मोहब्बत से निवाला खिलाओगे, वो भी तुम्हारे लिए सदक़े में शुमार होगा। अल्लाह के नबी इतनी सारी नेकियां रोजाना करना मुमकिन नहीं है। नबी ने कहा 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ लो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। रात में जब हम सोए 360 जोड़ों को सही सलामत सुलाया, सुबह में जब हम उठे अल्लाह सही सलामत उठाया। हमारे भेजे का एक छोटा हिस्सा जिसमें हजारों नसें होती हैं, अगर अल्लाह हुक्म दे दे उन नसों में एक नस को कि तू अपना काम करना बंद कर दे, हमारे बदन का आधा हिस्सा सुबह तक लकवा मार रह जाएगा, हमारे बदन को लकवा लग जाएगा, फालिज के असर से हम नाकारा हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने हमें लकवा नहीं मारा, अल्लाह ने हमारे बदन को लकवा नसीब नहीं किया। अल्लाह हमारे जिस्म के हाथों पैरों, भेजा, सर, हमारे चेहरे, हमारे पैर को सलामत जगाया। हमने कभी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया? अरे उठने की दुआ तक नहीं पढ़ते हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना। शाह तारीफ उस अल्लाह की जिसने मेरी मौत के बाद मुझे दोबारा जिंदा किया। हम शुक्रिया अदा करते, तारीफ बयान करते। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? किसी अंधे को देखो, किसी लंगड़े को देखो, किसी डायलिसिस के मरीज को देखो, किसी कैंसर के मरीज को देखो, किसी बड़ी बीमारी में मुलविस इंसान को देखो, तो अल्लाह से शुक्रिया भी ये दुआ पढ़ो, अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि उस तकलीफ से तूने मुझे आफियत में रखा, ऐसे मरीज तू मुझे नहीं बनाया, ऐसा लंगड़ा लूला अंधा मुझे नहीं बनाया। कभी अल्लाह के उन बंदों को देखकर आप अपने लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किए? अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाह कुरान में बार बार कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा होता है, बड़ा नाशुक्रा होता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्नद अहमद की भी ये हदीस है। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने भूखे, नबी को खाना घर में नहीं है, पेट पर पत्थर बांधकर दिन गुजार रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख से निढाल होकर बाहर निकल पड़े। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिले, सलाम दुआ किए, बोले आपका खैलूला करने का वक्त है, कहां निकल पड़े हो? बस ऐसे ही निकला हूं, भूख ने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। अबू बकर तुम क्यों निकले हो? अल्लाह के नबी मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया, भूख ने मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया। रास्ते में उमर बिन खत्ताब मिले, सलाम दुआ हुई, क्यों निकले हो, क्या वजह है? आपका आराम करने का वक्त है, घर में बहुत ज्यादा भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ भी घर में नहीं है, भूख ने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर किया है। दो सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, हजरत अबुल हैसम अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खेत पर गए, जो खजूरों का बाग था, लेकिन वो घर पर नहीं थे, चबूतरे पर बैठे
थोड़ी देर में आए, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे देखकर समझ गए आप बहुत ज्यादा भूखे हैं। जाकर खजूर का खोशा लेकर आए जिसमें अदगदरी खजूरें थी, आधी कच्ची आधी पक्की, लाकर रख दिए। छुरी लेकर बाहर निकले, नबी समझ गए ये हमारे लिए बकरी ज़बह करके लाना चाहते हैं। नबी कहते हैं ऐ अबुल हसन, बच्चे वाली बकरी को ज़बह ना करना, दूध देने वाली बकरी को ज़बह ना करना। ठीक है अल्लाह के नबी जाकर बकरी ज़बह करके भुन के तैयार करके लाए, खजूर खाए, पानी पिए, बकरी का गोश्त खाए। जब वापस जा रहे अल्लाह के नबी कहते हैं हाज़ा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही मिनन नईम, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। ऐ अबू बकर, ऐ उमर, सुनो अल्लाह की कसम, ये वो नेमतें हैं जिनके बारे में तुसाअलूना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, हमसे सवाल करेगा। किस चीज के बारे में? ज़िल्लुल बारिद व रुतबुन तय्यब व माउन बारिद। अल्लाह ने हमको, हम धूप में निकले थे, ठंडा साया अल्लाह ने अता किया। और रुतबुन तय्यब, हम बड़े भूखे थे, अल्लाह ताला ने तरोताजा खजूरें हमको खिलाया। हम बहुत ज्यादा परेशान थे, अल्लाह ने ठंडा मीठा पानी हमको पिलाया। इन नेमतों के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमको क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन नेमतों के बारे में पूछेगा जो नेमतें अल्लाह ताला ने तुमको रोजाना खिलाता पिलाता है। अल्लाह ताला जो नेमतों से तुम्हें मालामाल करता है, इन नेमतों के बारे में अल्लाह तुमसे क़यामत के दिन पूछेगा। अल्लाह के नबी कहते, बुखारी की रिवायत, अल्लाह के सामने बंदा रहेगा, बंदे के सामने अल्लाह रहेगा, कोई दरमियान में ट्रांसलेटर तर्जुमान नहीं रहेगा। अल्लाह सवाल करेगा, बंदा जवाब देगा। अल्लाह अपनी नेमतों के बारे में पूछेगा, बोल मेरे बंदे, क्या मैंने तुझे अलम तुसह्ही लका जिस्मक, अलम तुसह्ही लका जिस्मक, क्या मैं तुझे हट्टा कट्टा जिस्म नहीं दिया था? क्या मैं तुझे खूबसूरत तंदुरुस्त तवाना जिस्म नहीं दिया था? हाँ अल्लाह, बेशक तूने मुझे दिया। अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा, व नुरियका मिनल माइल बारिद, क्या मैं तुझे पीने के लिए ठंडा पानी नहीं दिया? हाँ अल्लाह, बेशक तूने दिया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, व ज़व्वजुतुक, क्या मैं तेरी बीवी और बच्चे तेरे दिल के सुकून के लिए नहीं दिया था? हाँ अल्लाह, मेरी बीवी बच्चे भी तू मेरे दिल के सुकून के लिए दिया। ये दुनिया का माल, ये दुनिया के फल फ्रूट, ये दुनिया की सवारियां, ये गाड़ियां, ये तमाम फूल फल, ये हवा, ये सारी नेमतें तेरे फायदे के लिए बनाया। तेरे लिए मैं इतनी नेमतें दिया, बता तू मेरी इबादत कितनी करके आया, मेरा शुक्रिया कितना बजा ला के लाया। अल्लाह तबारक व तआला जब सवाल करेगा बंदे से अपनी नेमतें याद दिला दिला के, बंदा लाजवाब हो जाएगा। अल्लाह ऐशो इशरत में पड़ गया, अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करना भूल गया, अल्लाह तेरी इबादत करने के लिए वक्त नहीं मिला, अल्लाह मुझे दुनिया में भेज, अब मुझे होश आ गया है, अल्लाह तेरी इबादत करके आऊंगा, अल्लाह तेरा शुक्रिया बजा ला के लाऊंगा आऊंगा, अल्लाह मुझे दुनिया में रवाना कर। अल्लाह हरगिज नहीं रवाना करेगा, अल्लाह हरगिज नहीं रवाना करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में सूरह वाक़िया में बयान फरमाता है, अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, जो पानी तुम रोजाना पीते हो, जो पानी तुम रोजाना पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, क्या इस पानी को आसमानों से बादलों से हमने नाज़िल किया या तुम खुद अपने आप पर नाज़िल कर लिए? फिर अल्लाह ताला कहता है, इतना ही नहीं, लौ नशाअ जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहते इस पानी को खारे से खारा बना देते, पीने के लायक नहीं छोड़ते। अगर हम चाहते आसमान से नाजिल होने वाले इस पानी को मुकम्मल खारा बना देते। जानते हो यह पानी कहां से आता है? साइंस को पूछिए, साइंस कुरान से तहकीक करके बताती है कि यह पानी जब धूप की शुआएं समंदरों पर करोड़ों अरबों खरबों एकड़ समंदरों पे पड़ती है, भाप की शक्ल में यह पानी आबोर की शक्ल में आसमान में जाता है, खारा पानी आसमान में जाता है, लेकिन अल्लाह मीठा पानी बनाकर उसे आसमान से नाजिल करता है, ऐसी जमीनों पर नाजिल करता है। अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना नहनु, बेशक हम हैं, मिनस समाई मा, जो आसमानों से पानी बरसाते हैं,
اور اتنا ہی نہیں، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، پھل پھول اگاتے ہیں، پیڑ پودے اگاتے ہیں، تمہارے لیے اناج اگاتے ہیں، تازہ تازہ اچھے میٹھے پھل تمہارے لیے ہم اگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی آیت میں آخر میں کہتا ہے، اے میرے بندو، اتنا سب ہونے کے بعد افلا تشکرون، کیا تم میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی کیا تم میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جا بجا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے افلا یشکرون، یہ لوگ میرا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ عز و جل قرآن میں سورہ قصص کی 73ویں آیت میں، سورہ روم کی 52 نمبر آیت میں، سورہ نحل کی 14 نمبر آیت میں، سورہ نحل کی 78 نمبر آیت میں بار بار اللہ کہتا ہے لعلکم تشکرون، میرے بندو یہی وہ اللہ ہے جو آسمانوں سے بادل پانی نازل کرتا ہے بادلوں کے ذریعے تاکہ تمہارے لیے پھل پھول اگا سکے۔ افلا تشکرون، کیا تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ یہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سمندروں میں تمہارے لیے ہواؤں کو چلا کے تمہاری کشتیوں کو موڑ موڑ کے تمہاری کشتیاں چلاتا ہے۔ افلا تشکرون، کیا تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ یہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہارے لیے اولادوں کی نعمتیں عطا کرتا ہے اور تمہارے دل کے سکون کے لیے چوپائیوں کو بنایا تاکہ تم ان کو کاٹ کر اس کا گوشت کھا سکو، نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکو۔ افلا تشکرون، کیا تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ یہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو تمہارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماں کے سینے سے خون کو دودھ بنا کر تمہارے بچپن میں تم کو دودھ پلا کر تمہارے ہڈیوں میں طاقت اللہ عطا کرتا ہے۔ افلا تشکرون، کیا تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، یہی وہ اللہ تعالیٰ ہے جو شہد کے مکھی کے منہ میں پھول کا رس دے کر اسے شہد کا خطرہ بنا کر تمہارے لیے شفا، اس میں رحمت اور شفا بنا کر تمہارے لیے بناتا ہے۔ کیا تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے عبرت کے لیے کئی لوگوں کے عبرت انجام واقعہ بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نے بنی اسرائیل کو نہیں دیکھا؟ وہ بنی اسرائیل جن کے لیے آسمان سے دھوپ لگتی تو ہم سایہ بنا دیتے، وہ بنی اسرائیل جو کبھی ایسے بیابان میدان جہاں پانی نظر نہیں آتا موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ہم کو پانی چاہیے، یہی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، میرے موسیٰ اپنی عصا کو پتھر پر مارو، اللہ کے حکم سے وہاں 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے پانی کے، ان کو تمہاری قوم کو پلانا۔ جب دھوپ لگتی تو بادلوں کے ذریعے سایہ اللہ بنا دیتا، پیاس لگتی تو پتھروں سے پانی نکال دیتا، بھوک لگتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے منہ و سلوہ ان کے لیے اتارا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا ناشکرا پن کیا، اللہ کی نافرمانی انہوں نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے عبرت کا نشان بنا کر ان کو دنیا سے ہٹا مٹا دیا۔ کئی ایک عذاب ان پر نازل کیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خہر سالی کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خطرناک عذابات سے دوچار کر کے دنیا سے عبرت کا نشان بنا کر اس نافرمان ناشکری قوم کو دنیا سے ہٹا مٹا دیا۔ اور یہ واقعہ قرآن میں ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے بیان کیا۔ اے امت محمدیہ، تم سے پہلے کے قوم والوں کو جب بھی ہم نے نعمتیں دی انہوں نے ناشکراپن کیا، ہم نے دنیا سے عبرت کا نشان ان کو بنا دیا۔ تم ایسا ناشکراپن نہ کرنا ورنہ تم کو مسلنے میں دیری نہیں لگتی، جیسے ان کو ہم نے دنیا سے مٹا دیا۔ اے امت محمدیہ، تم کو بھی عذاب دینے میں دیری نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ میری امت کو آسمان کے عذاب سے ہلاک مت کر، میری امت کو زمین کے عذاب سے ہلاک مت کر جیسے پچھلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے یہ 2 دعائیں قبول کر لی جس کی بنا آج امت محمدیہ ایک جھٹکے میں عذاب سے برباد نہیں ہوتے۔ کبھی فلسطین میں اللہ کا قہر برستا ہے، کبھی ترکستان میں، ترکی میں زلزلوں کی شکل میں بڑے بڑے شہر، بڑی بڑی عمارتوں کو زمین بوس اللہ بنا دیتا ہے۔ کبھی ملک شام میں، کبھی سیریا میں اللہ تعالیٰ دنیا کے چپے چپے میں زلزلے، عذاب اللہ تعالیٰ میسر کرتا ہے۔ کیوں؟ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کر کے شکر گزار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، اللہ کے سجدے کرنے والے متقی پرہیزگار بن جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ جھٹکے دکھاتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں،
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब ईद उल फितर, ईद उल अजहा की नमाज पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे औरतों के जमात के पास से, तो आपने कहा, या माशरन निसा तुसद्दिकुहुन्ना, ऐ औरतों की जमातों, अल्लाह के रास्ते में तुम ज्यादा से ज्यादा सदका करो। फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतों को देखा है। ऐ अल्लाह के नबी, हमारा जुर्म क्या है, हम क्यों रहती हैं? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि तुक्सिरनल लाना व तुकफिरनल अशीर, तुम अपने शौहर की हद से ज्यादा लान तान करती हो और अपने शौहर का नाशुक्रापन करती हो। एक शौहर अपनी बीवी के लिए कमाता है, खिलाता है, पिलाता है, पहनाता है, उड़ाता है, जिंदगी कुर्बान कर देता है, 50 साल तक अच्छा खिलाया, अच्छा रखा, अच्छे घरों में रखा, 50 साल के बाद इसका कारोबार ठप पड़ गया, वो अच्छे कपड़े अब नहीं ला सकता, ऐसे गाड़ियों में अब नहीं घुमा सकता, आलीशान बंगलों में अब नहीं रख सकता, फौरन उसका तिजारत डाउन हो गया। फौरन ये नाशुक्रियापन में कहती है कि मैं जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूं, मार आई तू मिन का खैरुल खत्ता, मेरी जिंदगी में मैंने तुमसे कभी खैर नहीं देखी, कभी सुख मैंने नहीं पाई, कभी अच्छे दिन तुमने मुझे नहीं दिखाए। ये बोलकर शौहर का नाशुक्रापन करती है। ये जुमला अल्लाह को इतना नापसंद है, इतना नापसंद है, अल्लाह उठाकर जहन्नम में पटक देता है, अल्लाह उठाकर जहन्नम में डाल देता है। अल्लाह कहता है, उम्मत मोहम्मदिया, नाशुक्रापन मत करो। अल्लाह कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं मजीद नेमतों से तुम्हें मालामाल करूंगा। वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरा नाशुक्रापन करोगे मेरा अज़ाब सख्त है, ये जान लो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, पहले के उम्मत में बनी इसराइल में 3 लोगों को अल्लाह आजमाया, एक कोढ़ की बीमारी वाला, एक गंजा, एक अंधा। तीनों के पास अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता आता है, सवाल करता है, अल्लाह तुझे कोई नेमत देना चाहे क्या मांगेगा? मेरा कोढ़ दूर हो जाए, लोग मुझे बस्ती से निकाल दिए हैं मेरे बीमारी की वजह से, मेरा कोढ़ दूर हो जाए। अल्लाह का नाम लेकर वो दुआ पढ़कर हाथ फेरता है, उसका कोढ़ चला जाता है। अल्लाह नेमत अगर देना चाहे, दौलत, कौन सी दौलत पसंद है? मुझे ऊंटनी पसंद है। एक हामिला ऊंटनी देकर दुआ बरकत की करके आगे बढ़ता है। ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे कोई नेमत देना चाह रहा, क्या मांगेगा? मेरे सर पर कभी बाल मैंने नहीं देखे, जब से पैदा हुआ मैं गंजा हूं, लोग मुझे गंजा कहते, मेरे सर पर बाल आ जाए मैं यही मांगूंगा। बरकत की दुआ पढ़कर हाथ फेरा, उसके बाल आ गए। अल्लाह दौलत देना चाह रहा तो क्या मांगेगा? मुझे गाय पसंद है, एक हामिला गाय देकर बरकत की दुआ किया, आगे बढ़ गया। बनी इसराइल का तीसरा आदमी जिसे अल्लाह इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है, अंधा। बोल, अल्लाह नेमत तुझे देना चाहे तो क्या मांगेगा? मेरी आंखें आ जाए ताकि मैं दुनिया देखूं, अब तक दुनिया नहीं देखा। बरकत की दुआ पढ़कर अल्लाह के हुक्म से हाथ पर, आंख पर हाथ फेरा, उसकी बसारत आ गई। अल्लाह दौलत देना चाहे, कौन सी दौलत पसंद है? मुझे बकरी ज्यादा पसंद है, मैं बकरी चाहता हूं। एक हामिला बकरी, एक गाबन बकरी, प्रेग्नेंट बकरी, उसे देकर बरकत की दुआ पढ़कर आगे बढ़ गया। अब चंद सालों के बाद ये ऊंटनी, ये गाय, ये बकरी बच्चा पैदा करती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे, उसके बच्चे, ये तीनों अपने अपने शहर में बहुत बड़े बड़े मालदार बन जाते हैं। अल्लाह जिसे दौलत देना चाहे उसे कौन रोके? अल्लाह जिसे फकीर बनाना चाहे उसे कौन अल्लाह के हुक्म के बिना दौलत अता करे? तीनों बड़े मालदार बन गए। यही फरिश्ता, अल्लाह ने इस फरिश्ते को फकीर बनाकर इन तीनों के पास रवाना किया। ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे अल्लाह के नाम से दे, मैं बड़ा फकीर हूं, मैं बड़ा मोहताज हूं, मैं मुसाफिर हूं, बहुत भूखा हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर दे। मेरे पास कुछ भी नहीं, चलो आगे बढ़ो। अरे ऐसा मत कर, मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत परेशान हूं। याद कर वो जमाना जब तू कोढ़ की बीमारी में था, तू खाने खाने को तरसता था, अल्लाह तुझ जैसे बीमार को सेहत अता किया, तुझ जैसे फकीर को दौलत अता किया। मैं आज उसी अल्लाह के नाम पर मांग रहा हूं, मुझे दे दे। मैं ना कभी कोढ़ी था, मैं ना कभी फकीर था, शायद तुमको गलतफहमी हुई, मैं हरगिज नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। इनकार कर दिया उसने, नहीं दिया।
अल्लाह का ये फरिश्ता कहता है अगर तू सच कहता है ऐसा ही रहना, अगर तू झूठ कहता है अल्लाह तेरी पिछली हालत को लौटा दे, तेरी पुरानी हालत में अल्लाह तुझे भेज दे। फिर आगे जाता है अल्लाह के बंदे मुझे अल्लाह के नाम पर दे, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत मुसाफिर हूं, दूर से आया हूं, बहुत परेशान हूं, मुझे अल्लाह के नाम पर दे। मैं नहीं देता, जा जो करना है कर लो, मैं नहीं देता। अरे अल्लाह के बंदे ऐसा मत बोल, याद कर वो जमाना जब तू गंजा था अल्लाह तुझे बाल दिया, जब तू फकीर था अल्लाह तुझे दौलत दिया। मैं ना कभी गंजा था, मैं ना कभी फकीर था, मैं हरगिज नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। अरे अल्लाह के बंदे अगर तू सच कहता है तो अपनी हालत पे रहना, अगर तू झूठ कहता है अल्लाह तेरी पिछली हालत में तुझे लौटा दे। फिर आगे बढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अंधे के पास आता है, कहता है अरे अल्लाह के बंदे मुझे अल्लाह के नाम पर दे, मैं मुसाफिर हूं, बहुत भूखा हूं, मुझे उस अल्लाह के नाम पर दे जिस अल्लाह ने अपनी कुदरत से तेरी आंखें बनाई। तू कभी अंधा हुआ करता था, अल्लाह ताला तुझे देखने के काबिल बनाया। तू कभी खाने को तरसता था, अल्लाह तुझे आज खिला खाकर दूसरों को खिलाने के काबिल बनाया। आज मैं मुसाफिर हूं, बहुत भूखा हूं, ऐ अल्लाह के बंदे मुझे उस अल्लाह के नाम पर दे जिस अल्लाह ने अपने रहमो करम से तुझे दौलत दिया, आंखें दिया, बसारत दिया। ये सुनकर वो अल्लाह का बंदा रोने लगा और ये कहने लगा तू कौन है मेरे भाई, तेरा एक एक जुमला सच्चा है, तू बिल्कुल सच कहता है। यकीनन मैं अंधा था, यकीनन मैं फकीर था, मैं देख नहीं सकता था, अल्लाह ने अपने रहमो करम से मेरी बसारत लौटा दी और मैं खाने का मोहताज था, आज मैं खाकर दूसरों को खिलाने के काबिल बना हूं, दौलत उस अल्लाह ने मुझे दिया। ऐ मुसाफिर, ऐ फकीर, अगर तू उस अल्लाह के नाम पर मांगता है ये सारी दौलत ले जा, ये सारी दौलत मेरे अल्लाह की दी हुई अमानत है, अल्लाह के रास्ते में मैं देने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर वो फरिश्ता कहता है मुबारक हो, मुबारक हो, ऐ अल्लाह के बंदे तेरे दो साथी अल्लाह के इम्तिहान में फेल हो गए और तू अल्लाह के इम्तिहान में पास हो गया। ये जान ले मैं वही फरिश्ता हूं, कभी अल्लाह के हुक्म से तेरी आंखों पर दुआ पढ़कर हाथ फेरा था, मैं वही फरिश्ता हूं जो अल्लाह के हुक्म से तुझे गाबन बकरी देकर दुआ पढ़कर गया था। आज अल्लाह ने मुझे फकीर बनाकर भेजा ये देखने के लिए कौन उसके अब शुक्रगुजार बंदे हैं, कौन उसके ना शुक्रिया बंदे हैं, कौन उसके रास्ते में देने वाले हैं, कौन उसके रास्ते में ना देने वाले कंजूस और वकील हैं। ऐ अल्लाह के बंदे मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह तुझे मजीद दौलत से मालामाल करे। क्यों? इसलिए कि तुम मोहताजों को, गरीबों को, फकीरों को देने वाला है। अल्लाह तेरे दो दोस्तों को बर्बाद कर दिया, फिर से फकीर बना दिया, उसे गंजा बना दिया, उसे कोड़ी बना दिया, जो अल्लाह की नेमत को अल्लाह के रास्ते में देने से इनकार किया और अल्लाह की नेमतों का नाशुक्रापन किया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं उन्जुर मा अस्फल वला तंजुर मा फौकक, तुम अपनी जिंदगी में अपने दिल को शुक्रगुजार बंदा बनाए रखने की खातिर अपने से कमतर लोगों पर निगाहें रखा करो, अपने से ऊंचे लोगों पर कभी निगाहें मत रखो। ये मत देखो मैं नमाज पढ़कर भी गाड़ी साइकिल चलाता हूं, पैदल चलता हूं, ये बेनमाजी होकर भी कारों में घूम रहा है, मैं अल्लाह का मुत्तकी बंदा होकर भी रोटियां और दाल खाता हूं, ये अल्लाह का नाफरमान बंदा होकर भी बिरयानियां और बड़े बड़े बंगलों में रहता है। कभी भी अपने से ऊंची हैसियत वालों पर निगाह मत रखो, अपने से कमतर गरीबों फकीरों पर निगाह रखो। वो देखो तो तुम्हारा दिल शुक्रगुजार बंदा बनेगा। उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जाओ उन लोगों को देखो जो फुटपाथ पर सोते हैं, अल्लाह ने उसे रहने के लिए छत भी नहीं दिया, अल्लाह मेरा छोटा मकान ही सही मुझे मकान दिया। उसके पैरों में जूतियां तक नहीं, मेरे पैरों में अल्लाह ताला जूतियां दिया। उसे पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, अल्लाह मुझे पहनने के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े दिया। मेरे भाइयों, कभी भी अपने से नीचे लोगों पे निगाह रखो, तुम्हारा दिल शुक्रगुजार बंदा बना रहेगा। हमारे नबी ये दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा लका ज़क्कारा लका शक्कारा लका सब्बारा, ऐ अल्लाह मैं तेरा हद से ज्यादा शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूं, तेरा जिक्र करने वाला बंदा बनना चाहता हूं, तेरा इबादत करने वाला बंदा बनना चाहता हूं। हमेशा अल्लाह के नबी ये दुआ करते थे,
اور اللہ کے نبی صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں معاذ ابن جبل سے کہتے ہیں واللہ لا احبک یا معاذ، واللہ لا احبک یا معاذ فداک ابی و امی. سارے صحابہ نبی سے کہتے تھے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لیکن یہ جملہ نبی معاذ ابن جبل سے کہتے تھے فداک ابی و امی، اے معاذ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. واللہ لا احبک یا معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اے معاذ. یہ بولنے کے بعد نبی کہتے ہیں لا تدعن فی کل دبر صلاۃ، اے معاذ لا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تمہاری زندگی میں ایک وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کو یاد رکھنا، اس وصیت کو یاد رکھنا. یہ وصیت کرنے سے پہلے کیا بول رہے ہیں نبی؟ قسم میرے اللہ کی میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میرے ماں باپ تم پر قربان اے معاذ، میری وصیت یاد رکھنا لا تدعن فی کل دبر صلاۃ، کبھی بھی زندگی میں ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی مت چھوڑنا، کبھی بھی یہ دعا پڑھنا مت چھوڑنا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تو میری مدد فرما، اللہ تو میری مدد فرما. کس معاملے میں؟ 3 معاملے میں. اللہ ذکر کا، ہر ہمیشہ تیرا ذکر میں بیان کر سکوں، وہ شکر کا، ہر حال میں تیرا شکریہ بجا لا سکوں، وہ حسن عبادتی کا، میں ہر حال میں تیری اچھی عبادت بجا لا سکوں. اللہ میری زبان کو تیرے ذکر سے تر رکھنے والے ذکر میں تو میری مدد فرما، ہر حالت میں میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، ایسا شکر گزار دل میرا بنا دے، ہر حال میں تیری اچھی سے اچھی عبادت کر سکوں، ایسی عبادت کرنے میں تو میری مدد فرما. اے معاذ کبھی زندگی میں یہ دعائیں تو کبھی مت چھوڑنا. جب ہم یہ دعا پابندی سے پڑھیں گے اللہ ہمارا دل انشاءاللہ شکر گزار بنائے رکھے گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جب تک اس کائنات میں اللہ زندہ رکھا ہے ہم کو اس کا بے انتہا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی ناشکرا پن سے، اس کی نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی نعمتیں اللہ نے ہم کو دیا ہے ان نعمتوں پر اللہ کا بے انتہا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان نعمتوں کا شکریہ دعاؤں کی شکل میں، عبادات کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں ہم کو اللہ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.